Good morning, dear students. Today we are going to discuss about promotion mix, promotion strategy in detail. We are discussing on marketing mix, the elements of marketing mix. There are four different elements, or we can say four different P's of the marketing: product, price, promotion, and place. These are the four P's of the marketing. In the last lecture, we already discussed about production or the product mix. We discussed in detail about how the product should be, how the product look like, what are the things which we have to consider when we speak about the products, what are the areas which we have to focus when we have to develop the product. Today, we are going to discuss about promotion and promotion mix, elements of promotion mix, what are the factors considering the promotion mix, what are the things which you have to take care while studying the promotion mix. So dear students, if you understand promotion means advertising, we are missing something. Advertising is just one part of promotion, but promotion is much wider than that. Advertising is just one part of the promotion, whereas promotion is much wider than that. We have to explain, we have to understand, we have to deal with the various elements of the promotions. Promotion is nothing but to create an awareness about the product in the minds of the customer. Promotion is nothing but to get the knowledge, give the knowledge, spread the knowledge about the products, its features, its functions, its configurations, its importance. सिंपल बात मैं अगर बता दूं तो कंपनी अपना प्रोडक्ट तब तक नहीं बेच सकती है जब तक वो कस्टमर को विश्वास ना दिला दे कि ये प्रोडक्ट तेरे काम का प्रोडक्ट है. Students, every company tries to sell the product in a better way. There are four elements: product, price, promotion, place. The product is wonderful. The best ever product you have produced. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है. The promotion, if it is not good, then there is no use of producing a better product. Your product is nice, your distribution is nice, you have charged the reasonable price also, everything you have done perfectly, but if you are not able to promote your product, it means there must be some kind of a problem. आपका पूरा प्रोडक्ट मार्केट से फेल हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको प्रमोट नहीं करोगे तो. इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट. Until and unless you are not able to convince the people, until and unless you are not able to make people understand what are the importance of the product and how it will be helpful to you, you will not be able to sell it. कितना भी अच्छा काम किया हो आपने, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, कितना भी अच्छा सर्विस दे रहे हो, लेकिन जब तक जनता को समझ में नहीं आता है कि ये कंपनी क्या बेच रही है, क्यों बेच रही है, कहां से मिलेगा, कौन लाके देगा, क्या ये मेरे लिए जरूरी है,
जरूरी है तो कितना जरूरी है, मुझे उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मुझे उसको खरीदने के पहले क्या सोचना चाहिए, ये सारी चीजें आपको कौन क्लियर करके देता है? ये सारी चीजें आपको क्लियर करके देता है आपका एडवर्टाइजिंग, आपका प्रमोशन. So today we are going to discuss in detail about the promotion. Now you will say, yes sir, last year in advertising we studied a lot. Yeah, you studied a lot. So if you are an advertising student, you will be having a basic knowledge about the things. And today we are going to further your knowledge in the promotion mix. So first of all, don't underestimate that promotion is only advertising. Advertising is just one part. Advertising is just one part. Advertising is just one area where promotion plays a vital role. Now, when we are going to study about this particular topic, we are going to understand what promotion is not and what promotion is. There are two important things which we need to understand. कि प्रमोशन क्या नहीं होता है और प्रमोशन क्या होता है. कोई भी क्लियरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हम करते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रमोशन नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन कर रहे हैं. हम गलती करते हैं, जो प्रमोशन नहीं है लेकिन हम उसको बताते हैं कि ये प्रमोशन है. हेलो, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट promotion is not and what promotion is. That is the most important criteria which we need to understand. While understanding this, we also have to understand what are the cautions, saudhani, what precautions we have to take, what area we have to consider, what area we have to taken into account while promoting the goods. So these are three things: what promotion is not, what promotion is, and what are the cautions we have to take while promoting the goods. Again, in this chapter, in this session, we are going to study about push, pull strategies and tools. Push. Try to push the product in the market and send the product to the customer. Pull. कोई भी दरवाजा होता है, धक्का मारे कि हम तो पुश होता है, अपने तरफ खींचेंगे तो पुल होता है. वैसे प्रोडक्ट को मार्केट की तरफ भेजना, पहुंचाना is a pushing the product. And when we are trying to bring the people towards the product, when we are trying to capture the people towards the product, it becomes a pull strategies. So push and pull. And part 3, we are going to discuss about the planning for the same. And in the planning, we are going to discuss about match tools to marketing objective. हमारे marketing के objective को पूरा करने के लिए कौन से tools की जरूरत पड़ेगी? What are the various tools which we need to use while marketing the goods? What are the tools which we need to understand while marketing the goods? That is the most important part we have to understand. When we speak about the marketing tools, marketing elements, then how it is helpful in increasing the sales, that we need to understand. Very important sentence. Deep, gehri, dive, jump into publicity. आज हम प्रमोशन और पब्लिसिटी के अंदर एकदम डीप डाइव करने वाले, डीप जंप करने वाले. हम कोशिश करने वाले हैं कि how the best we can sell in the market. So these are the basic areas which we are going to discuss. This video I have to throw in one of the international authors, so it will help us to understand the topic. So what promotion is not, what promotion is, cautions, demand, push and pull strategies and tools, when to use the push and pull tools. Then match the tools with the marketing objective, deep dive into publicity and
हाउ वुड यू डू, आप इसे कैसे पूरा करोगे, आप इसे कैसे कंप्लीट करोगे. These are the study area today as far as our topic is concerned. अब defining promotion, what promotion is not, प्रमोशन क्या नहीं होता है, क्योंकि प्रमोशन क्या होता है वो समझने के लिए वो क्या नहीं होता है उसे समझना जरूरी है. अगर हम ऐसा कहते हैं कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग प्रमोशन है तो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग की प्रमोशन है. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. एडवर्टाइजिंग इज वन पार्ट, एडवर्टाइजिंग इज वन पार्ट. देयर व्हाट प्रमोशन इज, तो पहला आपके माइंड में करेगा प्रमोशन करना मतलब एडवर्टाइजिंग करना. नो, एडवर्टाइजिंग तो प्रमोशन करने का एक हिस्सा है, एक एरिया है. ऐसा बहुत सारा आने वाला है, अभी आपको समझ में आएगा कि एडवर्टाइजिंग तो कुछ भी नहीं है, उससे भी अच्छे अच्छे मीडियम से जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को आगे लेके जाते हैं. तो व्हाट प्रमोशन इज, प्रमोशन इज not one activity, it is a set of activities, group of activities. जब बहुत सारी एक्टिविटीज हम साथ में मिलकर करते हैं उसे प्रमोशन कहा जाता है. What promotion is, promotion is designed to enhance the sales, जो सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, सेल्स को ताकत देने के लिए, सेल्स को फोर्स देने के लिए किया जाता है, उसे हमें क्या कहना है, प्रमोशन. सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को आगे लाने के लिए. अब लास्ट के 2 पॉइंट ध्यान से देखो यहाँ पे, फ्रॉम द राइट बायर एट द राइट टाइम. मैं फिर से बताऊं, but the promotion is set of activities designed to enhance sales. Promotion is set of activities designed to enhance sales from the right buyer at the right time. सही बायर से सही समय पे गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, सही डीलिंग करना is promotion. So promotion is a set of activities designed to enhance the sales from the right buyer at the right time. So इधर पे हमें क्लियर में समझ में आ गया कि what promotion is not, promotion is not advertising. Advertising is just one part of promotion. And the promotion is set of activities designed to enhance sales from the right buyer at the right time. सही समय पे सही बायर से प्रोडक्ट को, सही बायर को प्रोडक्ट बेचना, उसका प्रमोशन करना, उसको एनहांस सेल्स करना, उसको ही हम प्रमोशन कहेंगे. अब दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बेचना है तो उसके लिए, बेचने के लिए पहले लोगों की डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट के लिए. जब तक लोगों की डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट के लिए, लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं. We have to create a demand for the product in the minds of the customer. The customer, public should be ready to purchase our product. पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आतुर होनी चाहिए. तो हाउ द डिमांड इज जनरेटेड, हाउ वी कैन ब्रिंग द पीपल टू द प्रोडक्ट, हाउ वी कैन क्रिएट द डिजायर्स ऑफ द पर्सन इनटू द डिमांड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोस्पेक्टिव बायर जो होते हैं, जब वो प्रोस्पेक्टिव बायर हमारे पास आते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव बायर को एक्चुअल बायर में कन्वर्ट करना, convert the desire into the demand. So that is promotion. Promotion लोगों की डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करने का प्रयत्न करता है. तो whenever we speaks about promotion, promotion is helping us in creating the demand. Now there are certain caution. Caution is nothing but सावधानी. प्रमोशन का यूज अनइंटेंडेड पर्पसेस के लिए नहीं करना. अनइंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स जरूरी, अनइंटेंडेड मीन्स जो जरूरी नहीं है. ऐसे कोई भी पर्पस के लिए प्रमोशन नहीं करना जिसकी जरूरत नहीं है. डोंट यूज प्रमोशन फॉर अनइंटेंडेड पर्पस. Only use the promotion for intended purpose. I'm telling you now, you cannot try to promote illegal activities.
You cannot try to promote illegal activities. You should not try to promote unwanted activities. You should not try to promote unwanted activities. Do not use for अनइंटेंडेड पर्पस. खास करके अभी जो मैं एरिया में डिस्कस करने वाला हूँ वो पूरा अलग एरिया है. सोशल मीडिया एंड द वेब आर चैनल्स. सोशल मीडिया एंड द वेब आर चैनल्स फॉर प्रमोशन. प्रमोशन करने के माध्यम है ये दो, सोशल मीडिया और वेब चैनल्स. वेब चैनल आप देखते हो डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड में आज इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी ऐप यूज करने जाते हो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. आज इंटरनेट के माध्यम से आप जब भी कुछ भी काम करने जाते हो तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. आज यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो शुरू करने जाते हो तो पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. Try to understand how much the media is growing now, how much the technology is coming up now, how much the things are growing in such a way that the things are becoming more simple and more easy to the people. Are you getting what I mean to say? So, social media and web are channels. आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जबरदस्त कर सकते हो. आपको भी अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है, आपको भी आपके बिजनेस को अगर एक लेवल पे लेके जाना है, तो you can use the social media. If you are using a Facebook, if you are using a WhatsApp, you are using a Instagram, you can do a publicity using this channel. Maybe ये कहाँ कहाँ कितने लोगों तक स्प्रेड होगा और कोई अगर चाहेगा ये खरीदना तो वो खरीद भी सकता है, उतना आप इसमें कर सकते हैं. Do not use for unintended purpose. Social media and the web are channels. Resist price slashing. रेसिस्ट प्राइस स्लैशिंग. अननेसेसरीली इतना भी तुम्हारा प्राइस इतना भी बुरा मत कर देना, प्राइस को इतना कम मत कर देना कि दूसरे कंपनी को ऑब्जेक्शन आए. मुझे बताओ जियो ने क्या किया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फ्री में बेचना शुरू कर दिया. बड़े फ्री में बेचना शुरू करने की वजह से क्या हो गया, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट से हट गए, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट से जाना पड़ा, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट्स में डैमेज हो गया. तो इतना भी आप मत करो कि आप दूसरे कंपनी को तकलीफ कर दो. Then comes the promotion aren't duct tape. Duct में से एक की बांसुरी बज रही है, एक ही चैनल बज रहा है. प्रमोशन का मतलब है नहीं कि एक की बात 10 जगह पे जाके बोलो. एक सिंपल सी बात कहता हूँ. The way you are advertising in Mumbai, you cannot do the same way advertisement in the rural area. Because the population in Mumbai is different than the population in the rural area. The population in India is different than the population in America. So there is a difference. You have to understand this difference. You cannot just sell whatever you want to sell and wherever you want to sell by using the same kind of advertising word. You have to change. You have to move. You have to bring some new ideas. You have to bring some different shades. You have to think about the local people. For example, you are trying to advertise a product in the rural area and you are using only the communication medium that is English, and then it will be very difficult for the people to understand what exactly you want or what exactly you want to sell. Then your all efforts will be waste. Your all efforts will be waste. So you have to understand what you are selling and to whom you are selling. So it is not like the tap or just you are बजा रहे लोग सुनते जा रहे पागल की तरह. So this is not acceptable. Okay. So अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरे टॉपिक को समझ में आया है तो यस बोलो चैट बॉक्स में. Very good. If you understood this topic, then say yes in the chat box. Good. अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमें समझेगा. Yeah. Now the another topic which we are going to study is we are going to understand the promotion in detail. We are going to understand about the promotion in detail with the another example.
One second, I'm sharing the another video to you, so it will be helpful for you to understand. Did you see another video? If you are able to see the another video, say yes in the chat box. क्या आप नया वीडियो देख पा रहे हो? मार्केटिंग 101 प्रमोशन लिखा हुआ, मार्केटिंग 101 प्रमोशन लिखा हुआ वीडियो. या वेरी गुड बच्चा, थैंक यू वेरी मच. Now we are going to discuss about the promotion in little detail. One second, just I share the same video. One second. Yeah, 1 second. Will you able to see this promotion strategy part 2 of 3? ये देख सकते हो बराबर से promotion strategy part 2 of 3. Can you see this? This video comes, I don't know why. 1 second. Can you able to see this video? Okay, you able to see this push and pull strategy? दिख रहा है आपको? Yes? Yeah. Can you see this push promotion strategies? No. Okay, 1 second. 1 second, 1 second. 1 second. Yeah. I hope you are able to see now. Push and pull strategy दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? क्या आपको push pull strategy दिख रहा है? Very good. Now focus upon what I am trying to say. Dear students, promotion strategies, push strategies and pull strategies. ध्यान से सुना, मैंने पहले ही कहा, फिर से मैं पढ़ता हूँ. Push strategies and pull strategies. Push strategies means what? Taking the offering to the customer. हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाना पुश स्ट्रेटेजी. पुल स्ट्रेटेजी मींस व्हाट? गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू. पुल स्ट्रेटेजी मींस व्हाट? गेटिंग द कस्टमर टू कम टू यू. देखो, पुश करना प्रोडक्ट को धक्का मारना, पुल करना कस्टमर को हमारे पास लेके आना. अब पुश स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या क्या ट्राई करेंगे? क्रेडिट शो ट्राई करेंगे, पर्सनल सेलिंग ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे प्रमोशनल पैकेजिंग डिजाइन, हम ट्राई करेंगे पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग. ध्यान से सुनना, हम क्या ट्राई करने वाले हैं? हम ट्राई करने वाले अलग अलग एलिमेंट्स. The different elements are like, what is this? Why Rutuja is not muting herself? I'm removing Rutuja. Okay, thank you. वो जिसका भी साउंड म्यूट नहीं होगा वो इमीडिएटली ग्रुप से लेफ्ट हो जाएगा. मैं उसको रिमूव कर दूंगा. आई एम वार्निंग यू. या सो व्हाट इज द पुश स्ट्रेटेजी एंड पुल स्ट्रेटेजी? देयर इज अ डिफरेंस. तो पुश स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे? ट्रेड शो, एग्जीबिशन, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशनल पैकेजिंग डिजाइन, पॉइंट ऑफ सेल, डायरेक्ट सेलिंग. एंड व्हाट पुल स्ट्रेटेजी इज? गेटिंग द कस्टमर टू यू. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? एडवर्टाइजिंग. हम क्या करने वाले हैं? हाउ टू प्रमोट द सेल्स. उसके लिए कैसे पहुंचेंगे? एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, वर्ड ऑफ माउथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोले. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कस्टमर इसके बारे में अच्छा बोले. सो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, business to consumer, sales promotion. Then we are going to discuss about the discounts and everything. So there are so many things. There is push strategy and pull strategy. Push strategy में कुछ points है, pull strategies में कुछ points है. ये सभी points को हमें डिटेल में पढ़ने हैं. We are going to discuss today. Now आप देख सकते हो push promotional tools, trade show,
जैसे देखो एक बहुत सारे लोगों का काउंटर लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे बायर्स आए हुए हैं, एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। देन डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग आप लोगों को टीवी में बहुत बार आता है ये। आप अगर ये आज अभी ऑर्डर करते हो तो आपको इतने में मिलेगा, आपके घर पे होम डिलीवरी मिलेगी। देन पर्सनल सेलिंग, किसी को पर्सनली जाके मिलके अपने प्रोडक्ट के बारे में उस बार डिटेल में बताना, पर्सनल सेलिंग। देन प्रमोशनल पैकेजिंग, देखो प्रमोशनल पैकेजिंग यानी कि कैसे एक जैसा डिजाइन बना के एक साथ प्रमोशन करना उस चीज का, आप देख सकते हो अलग अलग नाम लिखे हुए लेकिन साथ में बेचा जा रहा है, प्रमोशनल पैकेजिंग। देन कम्स पॉइंट ऑफ सेल, ये तो आप लोग को पता है कि शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप लोग को देखा रहेगा बहुत सारी चीजें आप खुद से ही लेते हो, कोई अपने को हेल्प नहीं करता है, लेकिन वहीं पे आप लोगों को डिस्प्ले देते हैं, डिस्काउंट रहते हैं, 120 रुपए की चीज 100 रुपए में लिखा होता है वो प्रोडक्ट के नीचे, तो हमें अट्रैक्ट करता है वो चीज खरीदने के लिए। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है व्हीकल लेके जाना और व्हीकल लेके कोई भी एरिया में रुकना, ये जस्ट अपने फेरी वाले जैसे करते हैं, कोई एरिया में जाके रुकते हैं, वैसे इंटरनेशनल ब्रांड के लोग वैसे भी वहां पे बेचते हैं जहाँ पे उनको सेल करना होता है। अभी यहाँ पे ये तो सबका पुश प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, फिर से देखो पुश प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में क्या क्या आया, ट्रेड शो, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रमोशनल पैकेजिंग, पॉइंट ऑफ सेल, डिस्प्ले, डिस्काउंट एक्सेट्रा। देन कम्स द पुल प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। पुल प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज के अंदर आप देख सकते हो कैसा एडवर्टाइजिंग, पुल में क्या आता है एडवर्टाइज करना। देखो मैं फिर से बताऊं, पुश के अंदर हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। अब इसके अंदर सारी चीजों में देखो हमारे प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो पुश के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड शो। इसमें क्या कर रहा है हम कस्टमर तक जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर को टीवी में ला रहे, डायरेक्ट सेलिंग पर्सनली बात करते हैं, प्रमोशन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम अलग अलग वेराइटी ऑफ डिस्प्ले और डिस्काउंट रखते हैं। देन कम्स द पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी। पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन उसके क्या है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों से। दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ मैकडोनल्ड्स इज हैविंग अ प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, अवेकन द थ्रिल, बिग मैक अवतार मील। यानी कि देखो ये पुल कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं कि ये सारी चीजें इतने में ही, ये सारी चीजें यही प्राइस में। अब एप्पल के अंदर एप्पल इज सेइंग अबाउट थिंक डिफरेंट, ब्रांडिंग, एप्पल का एक नाम है, एप्पल इज इट्स ओन नेम, एप्पल का खुद का एक वेराइटी, देन वर्ड ऑफ माउथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम अच्छी बात बोले या हम एडवर्टाइज करें, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि कोई और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोले। यानी हमारे कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद के लेके गए वो जाके बोले कि नहीं ये कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत डेप्थ है, बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, तब जाके हम लोगों को ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट एक कंपनी में कुछ तो दम है। कस्टमर जब खुश होके जाता है तो नया कस्टमर लेके आता है। अगर आपको ऐसा लगता रहेगा कि हम हमारे कस्टमर को फंसा के पैसा बना लेंगे, तो दोस्त आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आप अपना बिजनेस तोड़ रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आपके कस्टमर तक आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट पहुंचाना, क्योंकि वही कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात बता सके। नहीं तो दोस्तों कभी भी आपको अच्छा कस्टमर नहीं मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना। आपको अगर आपका कस्टमर का बेस बढ़ाना है तो आपको अगर आपका कस्टमर का बेस बढ़ाना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म एंड हेल्दी रिलेशन विद योर क्लाइंट्स। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको बहुत सारे पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा, आपको बहुत सारा ऐसा काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा इतना काम करना पड़ेगा कि यू हैव टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल। देखो लोग आपका प्रोडक्ट को खरीदे ना खरीदे, लोग आपके प्रोडक्ट को चॉइस करे ना करे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना बड़ा अवेयरनेस फैलाना, इतना बड़ा लेवल तक जाना कि एटलीस्ट लोगों को आपके बारे में पता हो। मे बी वो लोग ना खरीदे, किसी और को बोले खरीदने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द लॉयल्टी प्रोग्राम, यू हैव टू रन अ लॉयल्टी प्रोग्राम, you have to bring the people towards you, you have to develop the such kind of relation with the customer who are healthy and happy to work with you. You have to organize an event, you have to organize a show, you have to organize a program, you have to sponsor the show. For example, Vivo IPL,
फॉर एग्जाम्पल जियो फिल्म फेयर अवार्ड, अब देखो फिल्म फेयर अवार्ड मैक्सिमम पब्लिक वॉचेस, आईपीएल मैक्सिमम पीपल वॉचेस, सो जब जब आईपीएल का नाम आता है, वीवो का नाम आता है, तो कितने लोगों में आप फेमस होते हो। एंडोर्समेंट, यू हैव टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट, a kind of a thing which endorse your product and endorse your company. So these are the certain thing by which you have to develop a strong relation. मैं फिर से स्लाइड पढ़ना चाहूंगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशन डेवलप करना है तो लॉयल्टी प्रोग्राम, इवेंट, स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट, ये चार चीजों का आपको फोकस करना है। यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉग्स, नेट पे ब्लॉग क्रिएट करते हैं, इंटरनेट पे ब्लॉग क्रिएट किया जाता है। यू हैव टू डेवलप दैट, एंड उसी को कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट क्योंकि आपका जो ऑफर है, आपका जो डिजाइन है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। That is what the offerings you have to do. So this is what the pull promotional strategy, push strategy and pull promotional strategy. So push promotional strategy कब यूज करना है, जब इंक्रीजिंग डिमांड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तब पुश स्ट्रेटेजी। जब आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी है, प्रोवाइड द सेल्स इंसेंटिव टू इंटरमीडिएट, जो मिडिलमैन रहेंगे उन लोगों को सबको आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो कोई काम नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट कोई क्यों बेचे जब तक तुम उसको कुछ खास नहीं देते। Until and unless you are not giving some handsome incentive to them, why they should try to sell your product, why they should sell? Added incentive for customer to buy relationship exists. अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट खरीदने पे और दूसरे कस्टमर को लाने पे अगर कुछ लॉयल्टी बोनस देते हो, कुछ बेनिफिट देते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन रहता है, कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाता है। Or at the same time, you have to do the seasonal display. You have to produce the goods in such a way. You have to make the people understand. You have to bring the novelty. Novelty का मतलब होता है variety. People wants variety. Nobody wants to purchase the old mentioned product. You have to give the price discount at point of sale. You know, जैसे कि शॉपिंग मॉल में जाते तो मैंने अभी कहा कि हेडिंग्स दिए जाते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कि 50 रुपए का प्रोडक्ट 40 रुपए में, 50 को ऐसे कट किया जाता है, 40 लिखा जाता है। सो ये सारी चीजें क्या करती है, प्रोडक्ट को नोवेल प्रोडक्ट की तरफ लेके जाती है। ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट विच कस्टमर विल बाय एंड मेक द कस्टमर इंपल्स टू बाय योर प्रोडक्ट, दैट इज इंपल्स परचेज इज एन लोअर कॉस्ट आइटम। ऐसा होता है जिसमें कस्टमर को ज्यादा खरीदने को मन करे तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह ऑफर करना चाहिए। पुल प्रमोशन कब यूज करना है आपको, एस्टैब्लिश लॉयल्टी इन रिपीट परचेज। अगर आपको आपके कस्टमर का लॉयल्टी, याद से सुन लेना, लॉयल कस्टमर कौन होता है, लॉयल कस्टमर इज अ पर्सन हु रिपीट्स द परचेसेस। जो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदने आता है वो आपका लॉयल कस्टमर होता है, और आपको कोशिश करनी है कि आपके लॉयल कस्टमर बढ़े, क्योंकि वही आपको आगे जाके लेके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे कस्टमर को लेके आते हैं। देन रीइंफोर्स द ब्रांड, लोग कहीं भूल ना जाए हमें, लोग कहीं हमें भूलना चाहिए, इसके लिए हमें उसको बार बार रिपीट करने के लिए, उनके माइंड को अटैक करने के लिए हमें पुल स्ट्रेटेजी करना पड़ता है। सो रेज द अवेयरनेस टू क्रिएट द अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें पुल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं पहले ही कहा, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें हमारा पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। पब्लिसिटी, रेपुटेशन मैनेजमेंट, वी हैव टू थिंक अबाउट द reputation management. Now what is reputation management? Reputation management is nothing but try to develop an image of the company in the minds of the people. Try to develop the image of the company in the minds of the people. एक अच्छा इमेज क्रिएट करना, एक अच्छा सेंस डेवलप करना, एक अच्छा कंपनी का जो हम कह सकते हैं कि एक लेवल मेंटेन करने के लिए वी हैव टू डू द पब्लिसिटी and the reputation management. So dosto, what exactly I meant to say in this chapter is, now I'm stop doing the sharing. So we understood about what the promotion mix is. We understood about the elements of promotion mix. We understood about the push strategy and pull strategy of promotion mix. In the presentation, in the video, what I have said is about pushing and pulling the promotion. There are certain element of pushing and there are certain element of pulling the things. So we understood the product promotion mix in detail. We are studying marketing mix, elements of marketing mix, product, price, promotion, place. These are the four areas which we are studying. We already studied about the product mix. Now we are studying about the promotion mix. Now
immediately at 9:45 join for the another session with the video. We are going to go in detail about the area, and you are going to learn very important concept which is very important from the examination point of view. Don't miss the lecture today. Attendance is really good, but I am not happy to see people are unnecessarily unmuting them. You have to perform in a discipline. You have to behave in a discipline. You should not be indisciplined in the lecture. If the lecture is conducted in the college, I am in the class, teacher is in the class, you are in the class, you maintain the discipline. So try to understand and keep the same kind of discipline here also, because we are far away. And I'm telling you, those who are attending the lecture will remain in the lecture for the next session. Otherwise, they will be removed from the group also because you are not interested. You are not interested. Try to understand, cooperate with us, believe in us, be regular, attend all the lectures, keep the record of all the lecture, keep the pen and pencil together while into the lecture. Accounts में तो आप रखते ही होंगे, but in the theory also you keep. Note down the topic which is being taught by the teachers and study. Thank you very much. Join immediately at 9:45 with the wonderful session. Without your cooperation, it is not possible. Thank you.